Hello students, in the previous class we have learned measurement unit of memory, primary memory, secondary memory, storage device. Now we read about data deletion and recovery. One of the biggest threats associated with the digital data is deletion. It means सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे डाटा के डिलीट होने की और उसकी रिकवरी करने की। डाटा या तो अनऑथराइज्ड यूजर डिलीट कर सकते हैं या अनवांटेड, कई बार हम अनविलिंगली हमसे डिलीट हो जाता है। तो हाउ कैन रिकवर डिलीटेड डाटा फ्रॉम द सिस्टम? The storage device can malfunction or crash down, resulting in the deletion of stored data. User can accidentally erase data from the storage device, or the hacker who want your data can delete the digitally data intentionally. Deleting digitally stored data means changing the detail of data at the bit level, which can very time consuming. In the case of data get deleted accidentally or corrupted, they arise to need to recover data. Recovery of data is possible if the content space marked as deleted have not overwritten. जैसे आप कॉपी पे कुछ इरेज करके अगर दोबारा लिख लेंगे तो इरेजेस जो चीजें हैं वो आइटम रिकवर्ड नहीं हो सकती। अगर आपने कॉपीज पे इरेज किए बिना आगे लिखा है तो वो आपको काटा हुआ भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से data recovery is a purpose of retrieving deleted, corrupted and lost data from the secondary storage device. There are usually two security concerns associated with data. One, क्या सिक्योरिटी कंसर्न है डाटा के? एक डिलीशन और दूसरा रिकवरिंग कि हाउ रिकवर यूर डिलीटेड डाटा. One is it deleted by someone, authorized person or software. These concerns can be avoided by limited access to the computer system and using password for the user account and files whenever possible. There is also an option of encrypting files to protect them from unwanted modification. The other concern is related to unwanted recovery of data by unauthorized user software. Many times we discard our old, broken, malfunctioning storage device without taking care to delete. So we assume the content of deleted file are permanently removed. जब आप उसको डिलीट करते हो तो आपकी फाइल्स और फोल्डर कहाँ जाते हैं? ट्रश में रिसाइकलिंग यू कैन recovered from the data. When you delete from there, then the data permanently deleted. Create a test file and then delete it using shift और delete से आप कीबोर्ड से डिलीट कर सकते हो। आप उसको रिकवरी कैसे करते हैं? आप undo कमांड यूज कर देते हो। तो undo क्या कर रहा है? आपके डाटा की रिकवरी कर देता है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर. You know, the computer is combination of hardware and software. What are software? Software are the set of programs, set of instruction is called software. We have studied about the physical component or the hardware of a computer system, but hardware is no use of its own. With, without software, hardware can nothing to do. अगर आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं है, आपने मशीन ले ली तो वो मशीन एक मशीन की तरह रह जाएगी, वो कुछ भी टास्क नहीं करेगी क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो इसको हार्डवेयर को कमांड देते हैं काम करने के लिए। तो कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक प्लेयर, तुम जो म्यूजिक उसके अंदर प्ले हो रहा है दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. You cannot see, you cannot touch the music, but music is a software and system music player is a hardware. So hardware is the physical component you can see, you can touch, it is called hardware. For example, RAM, keyboard, monitor are the hardware, and other hand software is a set of instruction and data that make hardware function to desired task. So computer system is a combination of software and hardware complete any task to do. The software comprises set of instruction
which on execution deliver the desired outcome. In the other words, each software is written from some computational purpose. Some examples of software include operating system like Ubuntu, Windows 7, Windows 10, word processing, OpenOffice, Microsoft Word, video player like VLC player, a document or image store on a hard disk और पेन ड्राइव रेफर टू सॉफ्ट कॉपी। जब किसी डाटा आपने स्टोर कर रखा है आपकी हार्ड डिस्क में पेन ड्राइव में देन इट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। और जब डाटा को आप पेपर की फॉर्म में ले आते हो जब प्रिंटेड फॉर्म में ले आते हो दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मीन्स डाटा कम इन पेपर फॉर्म। जब प्रिंटेड फॉर्म में डाटा आपके पास है दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जब आपका डाटा किसी डॉक्यूमेंट में सेव है पेन ड्राइव में दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, अब हमें क्यों जरूरत है सॉफ्टवेयर की? द सोल पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू मेक कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल। अब सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर को हार्डवेयर को यूजफुल करता है ऑपरेशनल करता है। ए सॉफ्टवेयर नो हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट, किस तरह से कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर किस तरह से वर्क करेगा ये कौन करता है आपको सॉफ्टवेयर। वी कैन नॉट टॉक टू इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर डायरेक्टली, हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। तो काम कौन करता है पहले इसको ऑपरेट कौन कर रहा है आपके सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर एक्ट, सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर एंड ए हार्डवेयर डिपेंडिंग on the mode of interaction with hardware and function to be performed. Software can be broadly classified into three categories. So software categorized in a three category. Number one, system software. The need of a system is called system software. Programming tools, जब आपको किसी प्रोग्रामिंग की जरूरत है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग टूल। एप्लीकेशन जो कस्टमर को नीड है अकॉर्डिंग टू द यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, the software that provides the basic function to operate a computer by interacting directly with its hardware is termed as a system software। जैसे आपने सिस्टम को ऑन किया सिस्टम ऑन होती है डेस्कटॉप तक पहुंचता है, डेस्कटॉप तक आने के लिए जो इंस्ट्रक्शन उसे दी गई वो किसने दी किया सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो इट इज द नीड ऑफ ए सिस्टम। It provides services directly to end user and some other software। अब डेस्कटॉप से आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने पेंट में काम किया या एमएस वर्ड में किया वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको सिस्टम को ऑपरेट करना पड़ा वो दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या इंक्लूड होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपके हार्डवेयर इट इज द नेम implies ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट द जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। An operating system is the most basic system software। आपका बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर या आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम, मैनेज कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? आप कौन सा यूज करते हो? मोस्टली वी यूज विंडोज, Windows 7, Windows 10, Linux, Ubuntu, Android, all these are called operating system। Second, system utility। क्या होती है सिस्टम यूटिलिटी? सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस के लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंप्यूटर सिस्टम को कहा जाता है इट इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस जो मेंटेन कर रहा है ऑपरेशन करवाना सारे कंपोनेंट से सीपीयू के कॉन्फ़िगर करना आपके कंप्यूटर के सिस्टम को दैट इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। सम यूटिलिटी आर शिप्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल डिस्क फ्रेगमेंटर। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है? उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे आपकी कपड़े की कवर्ड्स है उसके अंदर डिफरेंट ड्रॉर्स होते हैं अलग पार्टीशंस होते हैं। इसी तरह से
हमारी जो डिस्क होती है आप उसके अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं, डिस्क फ्रेगमेंटर. Formatting utility, system restore utility. Another set of utility are those which are not shipped with the operating system but are required to improve the performance. जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस. आपके सिस्टम में वायरस ना आए तो आप क्या डालते हो? एंटीवायरस, जिससे आप प्रिवेंशन कर सको अपने वायरस की सिस्टम के वायरस की. डिस्क क्लीनर, जो आपकी डिस्क को टाइम टू टाइम क्लीन करता रहता है. डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, जो आपकी फाइल को कंप्रेस, उसको साइज छोटा करके रख देता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लॉथ को फोल्ड करके रखते हैं अपने कबर्ड में, जिससे वो स्टोरेज स्पेस कम से कम यूज कर सके. इसी तरह से आप अपने डाटा को कंप्रेस करके रखते हैं. दैट इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी. नेक्स्ट, डिवाइस ड्राइवर. डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं बेटे? जब आप कोई यूटिलिटी यूज करते हैं तो आपको ड्राइवर यूज करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच कर रखा है. अब आप प्रिंटर डिवाइस यूज कर रहे हो तो आपको उस प्रिंटर के जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे सिस्टम में. As the name signifies, the purpose of a device driver is to ensure proper functioning. आप उसकी proper functioning कर सकें एक particular device में. When it comes to overall working of a computer system, जिससे आप इसकी overall working को अपने life में use कर सकें. The operating system does the work, but every day the new device and component are being added. हमारे नए नए डिवाइस हम ऐड कर रहे हैं. जैसे आप स्पीकर ऐड कर रहे हो तो स्पीकर के भी आपको ड्राइवर डालने हैं. आप स्कैनर ऐड कर रहे हो तो उसके भी ड्राइवर डालने पड़ते हैं आपको. तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल कंट्रोल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस एट द हार्डवेयर लेवल डिलीशन इट्स डिवाइस ड्राइवर. एग्जाम्पल से बेटा ये क्या दिखा रहा है आपको? यूजर. यूजर कौन होते हैं? जो आप और हम लोग सिस्टम को यूज कर रहे हैं. तो यूजर का इंटरफेस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, जैसे आपका MS वर्ड है, पेंट है. अब ये किसको यूज करेंगे? सिस्टम की यूटिलिटी को. सिस्टम यूटिलिटी किसको यूज करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम को. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या डले होंगे? ड्राइवर. और ये कहाँ से आएंगे? आपके हार्डवेयर. इस तरह से ये आपका वर्क होता है. द डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज ए इंटरफेस. ये इंटरफेस का काम कर रहे हैं बिटवीन द डिवाइस, एक डिवाइस और ऑपरेटिंग के सिस्टम के बिटवीन का. इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड सर्विस बाय हाइडिंग एंड डिटेल ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म एट द हार्डवेयर लेवल ऑफ द डिवाइस. Application software. Application software according to the need of a user. The system software provides the core functionality of a computer system. However, the different user need the computer for different purpose. और different लोग यूज कर रहे हैं सिस्टम को, उनकी नीड भी अलग होगी. उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनके सॉफ्टवेयर भी अलग अलग होंगे. तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं. तो जनरल पर्पज, जैसे जनरल जो सभी लोग यूज कर सकते हैं. जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर जो डेवलप होते हैं, जैसे MS वर्ड. आप कोई भी MS वर्ड यूज कर सकता है. इट इज ए डॉक्यूमेंटेशन. पावर पॉइंट, एक्सेल, पेंट, ये क्या है? जनरल पर्पज. फॉर एग्जाम्पल स्प्रेडशीट टूल्स. आपका एक्सेल है जो ओपन ऑफिस के सॉफ्टवेयर है, आपकी कैलकुलेशन के वर्क के लिए यूज कर रहे हैं. एडोब फोटोशॉप, जो आपकी एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं. ये क्या हो गए? जनरल पर्पस. कस्टमाइज, जैसे कई बार आप टेलर से कपड़े स्टिच करवाते हो अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट. इसी तरह से पर्टिकुलर किसी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, इट इज कॉल्ड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. It is similar to buy a piece of cloth with the specific color and fabric and cut, stitch or desired according to your need. इसी तरह से according to customer के according जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा, that is called customized software. प्रोप्राइटरी और फ्री और ओपन सोर्स. कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं. दोनों तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं. तो जो developers of some software allow public to freely use their software along the source codes with the aim to improve further with each other help. Such software is non-free and open source.
जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल, द सोर्स कोड ऑफ ऑपरेटिंग Ubuntu freely. All these software are free. So more example, Python, LibreOffice, OpenOffice, Mozilla, all these are free source. When software to use to purchase from the vendor, जब आप सॉफ्टवेयर किसी वेंडर से परचेज कर रहे हो तो उसका कॉपीराइट्स होता है कि इस सॉफ्टवेयर को कोई कॉपी नहीं कर सकता. इट इज पेड सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल विंडो, जब आप विंडो लेते हो या माइक्रोसॉफ्ट के आप लेते हो सॉफ्टवेयर, तो इट इज ए पेड सॉफ्टवेयर. आपको इसकी एक पेमेंट वेंडर्स को देनी पड़ती है. क्लियर है लेसन? इस लेसन की बेटा समरी. Computing device also refer a computer process and input data as per given instruction. Computer process data to generate information whose further analysis and interpretation. Computer system has four physical components. क्या क्या component होते हैं हमारे? CPU, primary, memory, input device, output device. Computer system has two type memory. Primary memory, that is RAM and ROM, and primary and secondary memory. Secondary pen drives. Software is a set of programs. Set of instruction is called software. Hardware. Physical component you can see, you can touch, it is hardware. Operating system is a interface between the user and the computer and survive the working of a computer, that is a monitor, control the hardware and software to the computer. I hope you have understand the lesson. Thank you.